हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The major political theories. There is the first point here is come to the liberalism. The liberalism is the most point here. The liberalism is a fairly on the all political ideology. Its root can be traced to be a days of their 16th century. Since then, it is a pass through the numerous is a stage. The best turn is Englishment had refused to be accept is a moral goal and absolute truth. The English colorist is a revolution is a 6088 had as a demonstrate there is a diverse right of the king. The French Revolution gave to the Canadian as the idea of liberties and equality and fraternity, and the American War of Independence a little earlier 1775 to here 76 led to the emphasis on the as a declarations of human right. First point is the mean of liberalism. The liberalism is what do you mean to liberalism? There is a Howland is a Luxix is an English scholar of political science once wrote it is a liberalization. It is a not to be easily described. The liberalism is a not to be easily described, much less defined, for the hardly less habit of mind than is the body of the doctrines. And doctrines is there. What is mean is the liberalism is a too dynamic and too flexible is a concept to give it the precise is a meaning. And yet their scholars has made to the attempt there to define it is a such three say that every simple liberalism is a theory and practice of individual liberties is a judicial and defense, and there is a constitutional state. According to the coroner is a liberalism is began and in the ideals of the individual freedom, individual human right and individual human happiness. The Ecopedias is a Brit Konka is defined to liberalism as an idea communities the freedom as a method and policy in a government, as organized a principle and society, and as a way of life for their individual and community. The liberalism is a theory of reform from it has is a tool for the reform is economic, social and political field. It is a theory of liberties is individually liberties, individually autonomy for it has agreed to the favor of the development of human personality. It is a theory of democracy for it has a favor constitutionally is government. The government based on the concept of the people, rule of law, and decentralizations, and free and fair of elections. To conclude, we may be highlight the three aspects of liberalism, which is the clear help us the understanding its mean. It is a social sphere. Liberalism stands for the secularism and society that oppose all kind of social discrimination in an economic sphere. It is a favor of capitalistic economics. Individually is ownership of the mean of the production and maximum profit even of motives. In a political sphere, it stands for the democratic, political individual or right and liberties. And responsives, there is a responsible of government, free and imperatives, judicialis and the like. जैसा कि आपको दोस्तों पता ही है कि लिबरलिज्म मतलब होता है उदारवाद। उदारवाद का मतलब होता है जो है खुला कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उदारवाद नीतियां होती है। तो ये भी एक थ्योरी थी जिसमें हम उदारवादी के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा आज के जो चैप्टर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही कि हमारा जो चैप्टर है आज जो है प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे, जिसमें सबसे पहली बात तो आ जाती है उदारवादी ही आती है। यानी देखा जाए तो लिबरलिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारवादी एक काफ़ी पुरानी राजनीतिक विचारधारा है और इसके जड़ों को जो है 16वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, और इसके बाद से ये कई चरणों में गुजर चुका है। यानी ये कई चरणों में गुजरा है और कई चरणों में जो है इसकी बहुत सी बातें को जो है अलग अलग डिफाइंड भी की गई है। पश्चिमी ज्ञानोदय से नैतिक मूल्य को जो निरपेक्ष सत्य नहीं माना, और इंग्लैंड की जो है गौरवमय क्रांति ने राजाओं को दैवीय अधिकार की जो है भर्त्सना की। फ्रांस क्रांति ने जो है स्वतंत्रता
और समानता और भाईचारे के मूलभूत विचार दिए। और इससे थोड़ा पहले अमेरिका जो है स्वतंत्रता संग्राम जो 1775 से 76 में मानव अधिकार की घोषणा पर बल दिया। अगर हम बात करें उदारवादी का अर्थ का, तो कहते हैं उदारवादी का अर्थ क्या है। कहते हैं राजनीति विज्ञान के अंग्रेजी विद्वान हेरोल्ड स्लस्की ने एक बार लिखा था कि उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि यह सिद्धांत का एक समूह नहीं है अतुल, दिमाग की आदत है, यानी हमारी दिमाग की एक हैबिट है, एक आदत है। इसका अर्थ यह है कि उदारवादी इतनी गतिशील और इतनी लचीली अवधारणाएं हैं कि इसका कोई सूक्ष्म अर्थ ही नहीं किया जा सकता है। फिर भी विद्वानों ने इसे जो है परिभाषित करने का सदैव प्रयास किया है, और प्रयास करने से जो है कहते हैं ना, जो प्रयास करता है उसे कामयाबी भी जरूर मिलता है। आप भी अगर प्रयास करो समझने का तो आपको जरूर समझ में आएगा और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर लोगे। कहते हैं अगर साराटोरिस के अनुसार बहुत सरल ढंग से उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार के रूप में देखा गया। यानी अगर उदारवादी का अगर अर्थ आप जानना चाहो तो इतना आप समझ सकते हो कि राज्य का सिद्धांत और व्यवहार के रूप में जो है उदारवादी को रिप्रेजेंट किया गया। इसमें कॉर्नर्स के अनुसार उदारवाद का आरंभ और अंत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति के मानव अधिकार और व्यक्तिगत मानवीय प्रसन्नता के साथ ही होती है। इसमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उदारवादी को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि उदारवादी स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का एक विचार है और सरकार में एक नीति और प्रक्रिया, समाज में संगठन का एक सिद्धांत और व्यक्ति द्वारा समुदाय के लिए जीवन का एक ढंग के रूप में परिभाषित किया गया था। उदारवादी सुधारों का एक सिद्धांत है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के प्रति जो है समर्पित रहता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सिद्धांत है क्योंकि इसमें मानव व्यक्तियों के विकास के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। यानी देखा जाए तो उदारवादी का मतलब यही होता है कि व्यक्तियों के जो विकास है वो भी व्यक्तिगत, उनमें काफ़ी जोर दिया जाता है। और एक सिद्धांत ये जो भी ये कहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए भी समर्पित होते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सिद्धांत भी उदारवादी के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं और ये लोकतंत्र का सिद्धांत भी माना गया है क्योंकि यह सर्वैधानिक सरकार लोगों की सहमति पर आधारित सरकार होती है। यानी सरकार को चुनने का अधिकार जनता की होती है और जनता के जो है सहानुभूति से ही चुनी जाती है। कानून का शासन, विकेंद्रीकरण और निष्पक्ष चुनाव पर बल सदैव देते हैं। हम जो है उदारवादी के 3 पक्षों को रेखांकित कर सकते हैं जो उसके अर्थ को समझने में हमारी सफल सहायता कर भी करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में उदारवादी धर्मनिरपेक्ष तथा एक ऐसे समाज का समर्थन भी करता है जो सभी प्रकार की सामाजिक भेदभाव का सदैव विरोध भी करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर जो है निजी स्वामित्व और अधिकतम लाभ कमाने के पक्ष लेते हैं सदैव। राजनीतिक क्षेत्र में यह जो है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता पर जो है अनुक्रियाशील और उदारवादी सरकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था इत्यादि का जो है सदैव समर्थन भी ये करते हैं। The next topic is a feature of liberalism. What is feature of the liberalism? The liberalism is the most important feature here. We might be identity as content characteristics of liberalism. There is a characteristics of feature are here. The first here, the individuality of liberties. Is the liberalism is a stimuli on the ideology of liberty. It's a love for the individual. Liberty is unquestionable. And it's become all liberalism is for the liberals, is a liberties. It is a very essence of the human personality. It is a mean to one as a development. And next here, individually centered theory. The centered theory here, liberalisms begin and the end with the individually. For the liberals, is the individually is the center of all the activity. The focal point individually is the end, will all other is a association including the state or the means which exist for the individually, and individually is the center around which all things move. That is the most important. And next here, the capitalistic economics. The liberalism is advocated a free market is economics. There is the liberalism is advocated of free market economics. It is a capitalistics as a mode of economics. It is a beliefs in the private property system regarding to the property right as a exclusive and the maximum profit as the only motive. And capitalism is the mode of production and distribution as the only is a essence
The market force are controlling mean of economics. And next here, a limited state. The liberalism is advocated there is a concept of limited state. The liberals view that state is a mean to the attaining the goods of individual. There, I suppose, of every types of totalitarian state is a totalitarian state. They are of the opinion that a move to powerful state mean a less free individually. Other lexes used by say that because the function of the state are limited, so are limited its power. And next here is opposed to be traditionally is a superstitions. As liberalism rose as a reaction is against traditional superstitions, it is by their nature. And opposed to be all the reactive nationality is measuring liberalism is emerging from the rationalities and reformations stool and actually stand for the reason and the rationalisms. As against the Federalist mode of man is opposed to being to liberalism is a favor as a model of man and who is a more active and more equitability. The next here is democracy. The democracy liberalism is exponent of the democratic government. It is seek to be establish a government of the people by their people and for the people. A government that functions according to the constitution and constitutionalisms. A government that is uphold the rules of law. A government that scares right and liberties of the people. The liberalism is a MC govern. Say it is a combination and democracy and individualism. There is the most important. The next topic here, there is a welfareism. The welfareism here, the liberalism is closely associated with their welfareism. The welfareism as a state activity is the idea that a state works for the welfare of the people. The liberals is the concept of the state activity ones where the state serves the people. In other words, the welfare state is a social service state. The next is the weakness of liberalism. There is an important topic there, a weakness of liberalism. The liberalism has its own inherent defect. It is a philosophy full of tensions. On the one of the hand, it is a unfolded their flag and liberties, and their other it is a agrees for the equalities. On one hand, it's a work within the framework of the market society. It is a promise the equal opportunities to all. The one hand, it is a ask the unlimited right to be acquire properties, and on the other it is a seek it is a demand share of profit for the welfare of those and there's a who are the unemployed and the needy. On the one hand, it is a builds as a capitalistic economics ending up to the ultimate in the inequalities and the inequalities, and so on the other is a endeavors to be establish the equalitarianism in societies. यदि बात यहाँ पर अगर हम करें उदारवादी की विशेषता, तो कहते हैं उदारवादी की विशेषता अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो उदारवादी का जो हमने विचारधारा रखा था वो हमारा अधूरा रहेगा। हम जो है उदारवाद के कुछ गुणों का पहचान कर सकते हैं जो कि यहाँ विशेषताओं के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं अगर पहली बात हम करें तो ये आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है हर एक व्यक्ति का जो है परम अधिकार है। कहते उदारवादी अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता का सिद्धांत है। कहते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रति जो है इसके प्रेम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। ये स्वतंत्रतावाद बन चुका है और उदारवादी के लिए स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का सार भी है और यह व्यक्ति के विकास का एक साधन के रूप में भी देखा जा सकता है। बात करें व्यक्ति केंद्रीय सिद्धांत, यानी व्यक्ति केंद्रीय सिद्धांत क्या है। कहते हैं उदारवाद का आरंभ और अंत व्यक्तियों के साथ ही होता है। उदारवादियों के लिए व्यक्ति जो है सभी गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु होता है और व्यक्ति साध्य है, जबकि राज्य सहित अन्य सभी संस्थाएं साधन है जो व्यक्तियों के लिए ही है और व्यक्ति केंद्र है जिसके इर्द गिर्द सब चीज़ें घूमती ही रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर व्यक्तिगत चीज़ है तो उसके इर्द गिर्द ही सारी व्यक्तित्व घूमती ही रहती है सदैव।
यदि बात करें अगली पॉइंट का, तो यही बात यहाँ दर्शाया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी उदारवादी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते उदारवादी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। ये तो आपको भी समझ है, उदारवादी का मतलब ही होता है उदार भावना, जो मैंने पहले ही आपको बताया, जिसमें जो है अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग भी लिया जा सकता है। कहते भारत में ट्रेड करने के लिए जो है सरकार की तरफ से उदारवादी नीति का ही जो है अनुसरण किया गया था, जिसमें जो है बहुत से ट्रेडरों को जो है फ्री में व्यापार करने की इजाज़त दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजों को भी कुछ हद तक ऐसी सुविधा दी गई थी। उसके बाद जो है अंग्रेज ने भारत पर कब्जा करने के लिए एक अधिकार बना लिया था। तो वही बात यहाँ था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी जो उदारवादी का अपना एक विशेष स्थान होता है। उदारवादी मुक्त बाजार व्यवस्था की जो है सदैव वकालत करता है, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है मुक्त बाजार का भी यही है। कहते हैं निजी संपत्ति व्यवस्था में विश्वास करता है, संपत्ति के अधिकारों को अति पावन और अधिकतम लाभ को एकत्र लक्ष्य उत्पादन और वितरण के जो है पूंजीवादी प्रकार के सार तत्वों और बाजार की जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का साधन भी ये मानता है। यदि बात करें हम अगली पॉइंट का, तो ये साफ शब्दों में हो सकता है कि सीमित राज्य। कहते हैं उदारवादी सीमित राज्य के सिद्धांतों की वकालत करता है, यानी राज्य जो है सीमित होनी चाहिए, ये जो है सीमित राज्य की वकालत करता है उदारवादी नीति। उदारवादी राज्य की व्यक्तियों की भलाई का एक सबसे बड़ा साधन माने जाते हैं। वो प्रत्येक सरकार की सर्वशक्तिमान राज्य का विरोध करते हैं और इसका विचार है कि राज्य जितना अधिक शक्तिशाली होगा, व्यक्ति उतना ही कम स्वतंत्र होगा। इसमें लॉक ने भी अपना शब्द यहाँ रखा था कि क्योंकि राज्य का कार्य सीमित है, इसलिए इसकी शक्ति भी सीमित होनी चाहिए। ये कॉल का जो है अपना विचारधारा था। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है परंपराओं अंधविश्वासों का विरोध। कहते हैं उदारवादी अगर देखा जाए तो पुराने परंपरा और अंधविश्वास को सदैव ही नकारा है। कहते हैं उदारवाद का उदय परंपराओं और अंधविश्वासों के विरोध प्रतिक्रिया के स्वरूप सदैव हुआ है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की जो है प्रतिक्रियावादी उपायों के विरुद्ध है। क्या कहते हैं पूर्ण जागरण एवं धर्म सुधार से प्रकट भी हुआ है। उदारवादी तर्क और विकेंद्रीशील का समर्थन भी रहा है। मनुष्य के समांती प्रतिरूप में निष्कर्ष होने के विपरीत उदारवाद ऐसे प्रतिरूप का समर्थक है जो अधिक सक्रिय एवं जो सृजनात्मक हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उदारवादी का जन्म जो हुआ है परंपराओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध हुआ है, यानी ये सदैव ही आगे खड़ा है इन अंधविश्वासों और परंपराओं के रिगार्डिंग। अगली बात अगर हम करें तो ये जो है लोकतंत्र। कहते हैं लोकतंत्र जो हमारी देश भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। उदारवादी लोकतांत्रिक सरकार का जो है प्रतिपादक है और ये ऐसी सरकार स्थापित करना चाहता है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में जो लोकतांत्रिक देश हमारा भारत जो है सदैव सशक्त रहा है। एक ऐसी सरकार जो संविधान और संविधानात्मवाद के अनुसार काम करे, जो कानून के शासन को जो है प्रोत्साहित करे और लोगों को अधिक और स्वतंत्रता की जो है रक्षा भी करे। इसमें मैक गवर्नेंस का कथन था कि उदारवादी लोकतंत्र और व्यक्तित्ववाद का एक मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष लोक कल्याणवाद। देखिए उदारवाद लोक कल्याणवाद से निकटता से जुड़ा हुआ है और राज्य का लोक गतिविधियों के रूप में कल्याणवाद का विचार है कि राज्य लोगों की कल्पना के लिए कार्य सदैव करता रहता है और राज्य की गतिविधियों के जो उदारवादी अवधारणा यह है कि राज्य लोगों की सेवा भी करता है और दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य का समाज सेवी राज्य भी होता है। यानी लोक कल्याणवाद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसमें उदारवाद लोक कल्याणवाद निकटता से जुड़ी रहती है और ये सदैव ही उदारवादी जो है अवधारणा को अनुसरण भी करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष उदारवादी कमजोरियां। देखिए अगर हम उदारवादी के बारे में जाने हैं तो उदारवादी की विशेषता भी किए हैं और अर्थ भी किया है, तो उदारवादी कुछ कमजोरियां भी जान लेना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं उदारवादी कुछ जो है अंतर्निहित त्रुटियां भी है और यह तनावों से भरा हुआ दर्शन भी है, यानी तनाव से भरा हुआ ये विचारधारा है। एक तरफ तो स्वतंत्रता का ध्वज फहराता है, दूसरी तरफ ये समानता की बात भी करता है। एक तरफ ये जो है बाजार आधारित समाज के ढांचों में काम करता है, दूसरी तरफ वो सबको सामान्य अवसरों का वादा भी करता है। एक तरफ तो यह संपत्ति ग्रहण करने से असीमित अधिकारों की मांग भी करता है, तो दूसरी ओर यह जरूरतमंदों और बेरोजगार लोगों को कल्याण के लिए लाभ में से कुछ हिस्सा मांगता भी है। एक तरफ तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निर्मित करता है, अंततः असमानता की ओर भी ले जाता है और दूसरी तरफ यह समाजवादी समाज की स्थापना करने का भी प्रयास करता है। तो देखा जाए तो
जो उदारवादी कुछ कमजोरियां हैं जो कि काफ़ी इसकी विशेषताओं को जो है खंडित करती है, लेकिन फिर भी उदारवादी जो है काफ़ी अलग है और उदारवादी के विषय में जानना भी आपके लिए काफ़ी रोचक रहा होगा। Marxism. The Marxism here, the theory is the Karl Marx are represent. The following the establishment of factories and there is a capitalistic is a mode of production during to the 70th to 80th centuries. Based the condition of the workers is a declarating the workers who is entered to the factory we are subjected to all the shortage of explorations and the long hair of the work. Life is a slum, ill health, etc. The result was the explanations of the workers ever to the increasing gap between the rich and the poor, economic inequalities, degradation and the alternation. Karl Marx is a Friedrich Engels is realized as a clear and the absorbed effect of capitalism and in the process. And the both about that is called to scientific is a socialism and Marxism. After the name of Marx was the contributor to the Marxian philosophy. After the Marx is the Hegel to include to among other. And the V as very important as Lenia, Russia and the Marvels Dono China. The one fact here is alienations at the mean, allophoness and stagnant apathies is a cutting off. The Mark find alienation of extermination and the man find himself external alleged to his the active his a self. यदि हम चैप्टर बात करें इसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे मेजर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें जो दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आता है मार्क्सवाद। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा था और अब जो है हम मार्क्सवाद के विषय में पढ़ेंगे। तो मार्क्सवाद भी जो है राजनीतिक में एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी देशों में कारखानों की स्थापना तथा पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था को परिणाम स्वरूप मजदूरी की दशा जो है बिगड़ने लगी थी, यानी मजदूरों की जो दशा थी, कंडीशन था, वो दिन पर दिन बिगड़ने लगी। कारखानों में प्रवेश पाने वाले मजदूर का है सब प्रकार से शोषण हुआ और काम के लंबे घंटे, गंदी बस्तियों में जीवन और कमजोर एवं खराब स्वास्थ्य इत्यादि। इसका परिणाम यह हुआ कि मजदूरों का शोषण और अमीर गरीब के निरंतर बढ़ता अंतर आर्थिक असमानताएं अविनित और अलगवाद बना दिया। उसके पश्चात कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने पूंजीवादी दुष्प्रभावों को स्पष्ट रूप से अनुभव किया और इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवाद मार्क के नाम पर को ले आए और मार्क्सवादी दर्शन में मार्क्स और एंजेल्स के बाद योगदान देने वाले में उनके अतिरिक्त देखा जाए तो B.R. लेनिन और जो है माओ जो कि चीन के रहने वाले थे सम्मिलित थे। अलगवाद का अर्थ है अकेलापन और व्यक्ति यानी उदासीनता जो है संबंध विच्छेदित और मार्क्सवाद में जो है अलगवाद का अर्थ है व्यक्ति अपने आप को अपने क्रियाकलाप और स्वयं से अलग थलग पाता है, यानी इंसान जो है मार्क्सवाद का अर्थ ही यही हुआ कि अपने आप को अलग थलग पाता है समाज में। तो इस बात जो है कार्ल मार्क्स ने बहुत ही गहराई से बताने की कोशिश किया। देखिए कहते हैं ना जब सिचुएशन पैदा होता है तभी कोई व्यक्ति जो है कुछ लिखने के लिए तैयार होता है। द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज अ मार्क्सिज्म एंड इट इज अ बेसिक पोस्टुलेट। देयर इज अ मार्क्सिज्म एंड बेसिक पोस्टुलेट हियर। The Marxism is a political philosophy of their works as class of liberalism is a political philosopher. It is a capitalism as class. It is a theory of the social change. Why social change take place and how do this change come into the effect? The social change take place because of their material factor and through their method is called to the dialecticals is a materialistics of method. The Marxism is based on content occupations and postulate here given. The first here, that nothing happened in the world on its own. Nothing happened in the world on its own. There is a way of causes and effect to the relationship in what we see around. The relations of the production and material relations among the people as the basis of society provide the causal will their productivity force and constitute the effect. The real of development is a way to the material development is economical development. The progressive development of productivity force indicate the progressive level of development. The next year the materials economics
fact is the dominant factor is both individual life and social life. And next, the human beings are born at the particular stage of social material development. Is born is a social setting and which is the exit of the dependent of him, but began on active beings. The human beings are making his open social setting. The Marx had said human beings are born in a history, but they make a history. There is a thought of Karl Marx. And social class is the next here. The social class especially is the opposing to classes through their stage and flowing process of revolution move in the forward direction. That is why the Marxist is said that every subsequent society is better than to the preceding society. And the next year, 6 point, the revolutions mean total and wholesome change. They are not to be negative force, but are what Marx had called their locomotive of history. When the launch and successfully is revolution take a society to the higher stage of development. The next point here, the stage began to the result of class society. Is a class institution. It is a neither, is a imperious, is a nor a just. It is a class institutions, it is a protection and progressive and exploitative institutions. It exists to be serve the dominant class which it is the instrument in the capitalist society. The capitalist state protect and promote the interest of the capitalist will. There is a socialist society. It is a protect and promote the interest of the working class. By the time of socialist society become a fully communist city, there is a state would be by them have a withdrawn away. There is a most important factor here. As a withdrawings is a way of the state is according to the Marxists the mean to this appearance of the state. Slowly and gradually the state apparatus should go to the whole way. But the Marxism is a advocate is a communism as the highest form of the society where a man would work as they wish and would be get that is want. From each according to his ability to each according to his need. There is the most important Marxism is here advocate that a form each according to his ability to each according to the need. हमारा जो यहाँ पर अगला पॉइंट आया है सिद्धांतों के रिगार्डिंग जो है मार्क्सवाद और इसके मूल सिद्धांत क्या है। तो इसके सिद्धांत जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मार्क्सवाद और इसके मूल सिद्धांत क्या थे। कहते हैं मार्क्सवाद मजदूर वर्ग का एक राजनीतिक दर्शन थे, जैसे उदारवादी पूंजीवादी वर्ग का राजनीतिक दर्शन होता है, और यह समाजी परिवर्तन का एक सिद्धांत के रूप में भी देखा जा सकता है। समाजी परिवर्तन क्यों होते हैं और ये किस प्रकार परिवर्तन प्रभाव आते हैं। समाजी परिवर्तन भौतिक कारकों के कारण सदैव होते हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि जैसे जैसे भौतिक कारण बनती है वैसे वैसे समाज का जो है परिवर्तन होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। और ऐसे तरीक़ों से भी होता है जिसके धनात्मक भौतिकवाद कहते हैं, यानी द्वंद्वात्मक यानी एक संघर्ष भी इसमें बना रहता है। मार्क्सवाद के मूल्य अवधारणा इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला तो धारणा यही थी, सिद्धांत यही थी कि दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं घटित होता है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत के जो है पहला पहलू था। हम अपने चारों ओर जो भी कुछ देखते हैं उसमें कारण और प्रभाव का संबंध सदैव जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं उत्पादन के संबंध में लोगों के बीच भौतिक संबंध जरूर होता है और समाज के आधार के रूप में कारण प्रदान करते हैं, जबकि उत्पादन की ताकतें जो है प्रभाव का निर्माण सदैव करती ही रहती है। उसके पश्चात है वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास ही होता है, यानी वास्तविक विकास अगर किसी में हो रहा है तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो भौतिक विकास के रूप में आप देख सकते हो, अर्थात उसका आर्थिक विकास हुआ है। उत्पादक ताकतों का गतिशीलता विकास की गतिशीलता सदर की ओर संकेत सदैव करती ही रहती है। कहते हैं भौतिक हो चाहे आर्थिक घटक व्यक्तिगत जीवन और समाजी जीवन दोनों में ही एक प्रमुख घटक के रूप में देखा जा सकता है।
मनुष्य सामाजिक भौतिक विकास की विशेष अवस्था में पैदा होता है, अर्थात एक जैसी सामाजिक स्थिति में जो उसके स्वतंत्र अस्तित्व में होते हैं, परंतु सक्रिय होने के कारण मनुष्य अपनी सामाजिक स्थिति स्वयं निर्मित करता है। मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य जो है इतिहास में पैदा होता है परंतु वह इतिहास बनता है, यानी इतिहास में ही पैदा होता है परंतु वह इतिहास ही बनाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, मार्क्सवाद ने साफ शब्दों में इस बात को जो है जाहिर करने की कोशिश किया था। हमारा अगला पॉइंट जो है, सामाजिक वर्ग विशेष रूप से विरोधी वर्ग अपने संघर्ष के माध्यम से तथा क्रांति की प्रक्रिया का अनुसरण करके आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी कारण मार्क्सवादी कहते हैं कि प्रत्येक आने वाला समाज पिछले समाज से बेहतर होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देखते भी होंगे कि जो बच्चा पहले जन्म लेता है उसका और जो आगे जन्म लेता है उसका, उसमें बहुत ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं। पुराने समय के समाज जो था वो अलग था और आने वाला समाज जो है अलग है, क्योंकि इसका जो है दिन पर दिन विकास होता ही चला जाता है और विचारधारा भी चेंज होता ही चला जाता है। तो इसलिए साफ शब्दों में मार्क्स ने इस बात को जो है रिप्रेजेंट किया था और मार्क्सवादी विचारधारा में डाला भी था कि प्रत्येक आने वाला समाज पिछले समाज से सदैव ही बेहतर ही होता है। कहते हैं क्रांतियों का अर्थ जो है पुण्य रूपेशन और समग्र परिवर्तन ही माना गया है। वे नकारात्मक ताकत नहीं है, परंतु जैसा कि मार्क्सवादी ने कहा है कि इतिहास के इंजन है, यानी इतिहास को चलाने के लिए ये इंजन के रूप में जो है क्रांति देखी जा सकती है। जब क्रांति किया जाए और सफल हो जाए तो क्रांति समाज के विकास के उच्च अवस्था में ले जाता है। जैसे आपने फ्रांस की क्रांति भी पढ़ा था, उसमें क्रांति हुई और क्रांति होने के कारण सभी देशों में जो है इस भावना को उत्पन्न किया और भारत में भी उसी प्रकार की क्रांति को देखने को आपको मिला होगा। कहते हैं अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें साफ शब्दों में यही लिखा हुआ है, वर्ग समाज का परिणाम होने के कारण राज्य एक वर्ग संस्था है, यानी वर्ग समाज। आपको पता है कि हमारे भारत में भी जो है वर्ग में बटे हुए हैं, वर्ग में समाज बटे हुए हैं, इसलिए राज्य एक वर्ग संस्था है। यह न तो निष्पक्ष है और न ही न्यायपूर्ण है। एक कहते हैं वर्ग संस्था है, यह पक्षपात पुण्य दमनकारी और शोषणकारी संस्था भी हो सकती है। यह जो है प्रभुत्वशाली वर्ग की सेवा के लिए अस्तित्व में है और उस वर्ग का यह हथियार भी है। पूंजीवाद समाज में पूंजीवादी राज्य पूंजीवादियों के हितों की रक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जबकि समाजवादी समाज में यह जो है कामगार समाज के हितों की रक्षा उनका एवं प्रोत्साहन भी करता है। समय के साथ जब समाजवादी समाज पूरी तरह से साम्यवादी हो जाएगी तब राज्य स्वयं ही लुप्त हो जाएगा। तो इसमें जो है साफ शब्दों में मार्क्स ने बात बताई भी थी कि यदि समय के साथ जब समाजवादी समाज पूरी तरह से जो है साम्यवादी हो जाएगी तब राज्य जो है अपने आप ही लुप्त हो जाएगा। इन्होंने इसका एक फैक्ट भी था कि मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य के स्वयं विलुप्त हो जाने का अर्थ है राज्य का गायब हो जाना, अर्थात धीरे धीरे और क्रमश राज्य का ढांचा पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाएगा। जैसे अगर आप देखो आज के समय में तो कहते हैं, अगर समाज में हम देखते हैं तो आज जो है धर्म जो है धीरे धीरे नष्ट होता चला जा रहा है और इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। पहले के समय में लोग अपने ही समाज में अपनी जाति से मैरिज करते थे, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है। कहते हैं शहर में तो ये कई मायने में लुप्त भी हो चुका है और गाँव में भी लुप्त होने के कगार पे आ चुका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे जो है ये जो है लुप्त भी होता ही रहेगा, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो जाति हो, चाहे समाज हो। इस प्रकार मार्क्सवादी जो है साम्यवाद समाज के उच्चतम रूप की वकालत भी करते हैं, यानी उच्चतम रूप की वकालत करना मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, जहाँ मनुष्य अपनी इच्छा को से काम करेगा और अपनी आवश्यकता से ही प्राप्त करेगा, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मार्क्सवाद में साफ विचार था कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाइलाइट्स ऑफ मार्क्सिज्म। The Marxism revolves around to the following theoretical propositions. The first here, dialectic is a materialism. It is a sum total of the general principles which is explained as to why and how social change take place. There is a most important things here. The social change take place because of their material factors and through the dialectical materialistic method. The dialectical materialistic method is a triple method. According to the Marx, here the first relation of production. The relation of production here constitutes the base of society at any given point of time and what are called the social
as the relations among to the people for their mark list, the relation of the production. And the next here, productivity force. The productivity force here constitute those elements which the originate from to the relation of the production, but which throw the opposite to the later. Is a promise as a more production through the never method and device. In every simple word, the Marxian theories state that all the development take place through their stage between two opposite because of the factor which are economics. The factor here is the new mode of production is the result of stage between to the relation and production and productivity force at the mature stage of their development. The new mode of production has the merit of both the relation and productions and productivity is a force, hence a higher stage of economical development. The next here, historical materialism. The historical materialism is also called to the economical materialistics as a dramatic interpretation of history. The Marxians as explanation of history is that it is the record of the self-development of productivity force that society keep marching on the path of economics material development, that each stage of development indicated their level of development attained. That history is the history of the numerous is a social economical formations. Employment is a communist or slave, Owings is a feudal, is a capitalist, and thereafter the traditionally he is the socialist. Is a socialist is here flow by the common society, and that is succeed of society is an improvement over the preceding ones. That the socialist is a society after the abolition of the capitalist society would be a classless society, but with a state is the form of is a dictatorships of the proletariats. As a communist society which flow the socialist society would be a both classless society and is a stateless society. The next here, theory of corpus value. The theory of corpus value here is the another characteristics of Marxism. The Marxism said that it is the work who is a create value is the commended when to the produce aids, but he does not get what is a produce. He get only the waste over to above waste is what goes to their employer. That is a corpus value. The corpus value is the difference between that the value is a laborers produce and that he get in the form of wage. In a simple word, the laborers is a get to the wage, the employers the profit. This corpus value make their rich and richer and the poor is a poor. It is through the corpus value that is a capitalist is a thrives. And next here, a theory of class stage is another tenet of the Marxism. In the Marxism's view, all the history has been to history of class stage between to the opposing classes. A class stage is the characteristics of the class societies. In the classless society, there is no class stage because there is such as the societies no opposing anthropistic class. The class stage is the class associate is a slave owning society. Their feudal society and capitalist society is of mainly three types: economical and ideologically and politically. There is a three stage here: is economics, is ideologically and political. The Marxism is advocate a revolution. The Marxism advocates says a revolution. The revolution in the Marxists say that is the locomotives of history. The revolution occurs when to the relation of the production come into the conflict with the productivity force and leading thus there is a new mode of production. They are very to about their complete transformation of society without as a violence is a if possible and with it is a necessaries. The revolution indicates the change. The Volsums is a change and change is the very character of the given society. They signify the coming up to a higher stage of social development. Accordingly, there is a Marxist is a regard a revolution as a positive phenomenon. There is the most important here. The next here are dictatorships of the proletariat.
There's a proletariat is a mean that rule of a working class. It is a state of their workers is the socialist society which is following the capitalist is a society. It is a dictatorships of their worker in the socialist society is the sense there is the dictatorships of the capitalist in their capitalist society. And their capitalist rules their way and then want. And now the workers rule is a socialist society is the way the worker want. And nevertheless is a mark make it is a clear that the is a dictatorship of the proletariats is the worker state in the interim of the trans-relations agreement which the function is between to the capitalist society and the community society. Once the socialist is a society is a complete established is a workers state will be not be needed. It will be with here a way to disappear slowly, and the Lenins insist that the dictatorships of the pro is a lateral and is a better than to the burgeoisie state. Both equitably as a quantitatively there is a qualitatively at the look after the interest and welfare of the whole multitudes of workers rather than to handful of capitalists. The socialist society that follow the capitalist society after the abolitions and classless society. It is a classless society is the sense that all are worker and various works their work in the office, in the factory, on the field. Each get a job according to one's is ability from each according to your ability to each according to the work. The communist society which is the flow the socialist society will be both the classless society and stateless society. हम जो आ गए हैं आज मार्क्सवाद की विशेषताओं के ऊपर। देखिए मार्क्सवादी की कुछ विशेषता थी जिसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। मार्क्सवादी के अगर सिद्धांतों की तो हमने चर्चा कर लिया, लेकिन इसके साथ भी विशेषता का चर्चा करना ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्क्सवादी निम्नलिखित जो है सैद्धांतिक विचारों के इर्द गिर्द ही घूमता था। कहते हैं द्वैतात्मक भौतिकवाद उन सब सामान्य सिद्धांतों कुल योग है जो स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। यानी मार्क्सवाद ने साफ शब्दों में इस बात को जो है खोज लिया था कि सामाजिक परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं, और सामाजिक परिवर्तन भौतिक घटकों के कारण और तदात्मक भौतिकवादी प्रक्रिया के माध्यम से ही होते हैं। तदात्मक भौतिकवाद प्रक्रिया जो है त्रिस्तरीय प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है। यानी उन्होंने ये बात साफ शब्दों में ढूंढ लिया कि सामाजिक परिवर्तन भौतिक घटकों के कारण अध्यात्मक भौतिकवाद प्रक्रिया के माध्यम से होती है। यानी जो भौतिक चीजें होती है इसकी वजह से जो होता है समाज का जो है परिवर्तन होता है, और एक द्वंद्वात्मक यानी आपस में संघर्ष की वजह से भी ये देखने को मिला है। और इसी के आधार पर उन्होंने जो है इसको 3 स्तरीय प्रक्रिया बताया है, जिसके पहला तो है उत्पादन के संबंध। कहते हैं किसी भी समय पर समाज का आधार होता है, यानी किसी भी समय पर जो है समाज का आधार ही होता है उत्पादन के संबंध, जिन्हें लोगों के बीच जो है सामाजिक संबंध कहा जाता है। मार्क्सवादियों के लिए ये उत्पादन के संबंध थे जो कि बहुत विशेष थे। बात अगर हम करें उत्पादन की शक्तियों के तो कहते हैं वो तत्व होते हैं जो उत्पादन के संबंध से उत्पन्न होती है, परंतु ये संबंधों के विरुद्ध होने के बावजूद भी नई विधियों के माध्यम से अधिक उत्पादन का जो वादा भी करती है, जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। यदि इन सब बातों को अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि सारा विकास विरोधियों के बीच संघर्ष के कारण ही होता है, और उन कारणों से ही होता है आर्थिक। यानी आप कह सकते हो कि मार्क्सवादी विचारधारा में यही बात कहा गया है कि सारा जो है विकास विरोधियों के बीच संघर्ष के कारण ही होना संभव बताया गया है। अगर एक फैक्ट की हम अगर बात करें जिसमें उत्पादन की नई नीतियां यानी पद्धति उत्पादन के संबंध और उनमें विकास की प्रवृत्त अवस्था में उत्पादक की शक्तियों के बीच संघर्ष का ही परिणाम माना गया है। उत्पादन की नई पद्धतियों में उत्पादन के संबंधों और जो है उत्पादक ताकतों दोनों के गुण हैं, इसलिए आर्थिक विकास की यह उचित अवस्था माना जा सकता है। अगर हम बात यहाँ पर करें तीसरी तत्व को जो कि ऐतिहासिक जो है भौतिकवाद के रूप में है, तो कहते हैं इतिहास की आर्थिक और भौतिकवादी निदानवादी और व्याख्या भी करते हैं। इतिहास में मार्क्सवादी व्याख्या यह है कि यह इतिहास उत्पादन की शक्तियों के आत्म विकास का एक रिकॉर्ड है कि समाज आर्थिक भौतिक विकास के पक्ष पर चलता है सदैव। विकास की प्रत्येक अवस्था जो है प्रायः किए गए विकास के सदर का संकेत ही देती है, और इतिहास अनेक सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का इतिहास भी माना जाता है। आरंभिक साम्यवादी दास रखने वाले सामंतवादी पूंजीवादी और उसके बाद संक्रमित समाज जिसके बाद
साम्यवादी समाज जो कि प्रत्येक उत्तरोत्तर समाज अपने पिछले समाज से बेहतर ही होती है, इसमें साफ शब्दों में जो है बताया गया था। समाजवादी समाज पूंजीवादी समाज के समाप्त होने के बाद भी वर्गहीन समाज ही होगा, परंतु सर्वहारी और तानाशाही के रूप में साम्यवादी समाज जो समाजवादी समाज का अनुसरण करता है वही वहीन यानी वर्गवहीन समाज और राज्यवहीन समाज दोनों ही होगा। ये साफ शब्दों में जो है मार्क्सवादी विचारधाराओं का मानना था। कहते हैं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत भी मार्क्सवादी का ही विशेषताओं में से अन्य है। इसके अनुसार मार्क्सवादी कहता है कि मजदूर जो है कामगार वस्तु को उत्पादित करते समय उनमें मूल्य निर्मित करता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता है जिसका वह उत्पादन करता है। उसे केवल वेतन मिलता है और वेतन उसे ऊपर जो कुछ होता है वह मालिक ले जाता है। यह अतिरिक्त मूल्य है। अतिरिक्त मूल्य श्रमिक द्वारा उत्पादित मूल्य और उससे प्राप्त होने वाले वेतन के बीच का कुछ अंतर माना जा सकता है। सरल शब्दों में मजदूर को वेतन प्राप्त होता है और मालिक को लाभ। यह अतिरिक्त मूल्य धनी और धनी के जो है निर्धन और निर्धन को निर्धनता बनाता है। अतिरिक्त मूल्य के दम पर ही पूंजीवादी पनपते हैं। यानी इसमें मार्क्सवादी ने साफ शब्दों में ये बात बोला था कि मजदूर जो है मजदूरी करता है, सामानों का उत्पादन करता है, लेकिन सामान को उत्पादन करने में कहते हैं कि जो मजदूर होता है उसको कम वेतन मिलता है और उसके रिगार्डिंग मालिक को जो है सारे लाभ जो है मालिक को जाता है। इसका मतलब कहा जाए तो धनी जो है धनी होते चला जा रहा है और गरीब जो है गरीब होता चला जा रहा है। तो आज के बात देखें तो कहते हैं अतिरिक्त मूल्य के दम पर ही पूंजीपति जो है काफ़ी पनप रहे हैं और काफ़ी प्रफुल्लित भी हो रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है मार्क्सवादी का ही एक देन है। कहते हैं मार्क्सवादी का एक अन्य सिद्धांत के अंतर्गत भी ये आता है। मार्क्सवादी के विचारों में आज का इतिहास विरोधी वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है। वर्ग संघर्ष जो है वर्ग समाजों की विशेषता है और वर्गहीन समाज में कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि ऐसे समाजों में कोई विरोध वर्ग नहीं होते हैं। वर्ग समाजों में दास रखने वाले समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। देखा जाए तो आर्थिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक। मार्क्सवादी क्रांति को जो है पैरवी करता है और मार्क्सवादी कहते हैं कि क्रांति इतिहास का इंजन होती है। क्रांतियाँ तब होती है जब उत्पादन के संबंधों का उत्पादन के ताकतों के साथ संघर्ष सदैव होता है, जो उत्पादन की नई पद्धति की ओर ले जाता है। वह समाज में पुण्य परिवर्तन लाती है यदि संभव हो तो बिना हिंसा के, और अधिक आवश्यक हो तो हिंसा से भी, यानी हिंसा का भी सहारा लेते हैं और हिंसा के भी बिना भी कर सकते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन की सूचक है। कहते हैं पुण्य रूपन परिवर्तन और जो है समग्र परिवर्तन एक समाज के मूल्य चरित्र में सदैव परिवर्तन ही रहता है। वे सामाजिक विकास की उच्चतर अवस्थाओं के आगमन की सदैव घोतक होते हैं। अंत मार्क्सवादी क्रांति को एक सकारात्मक घटना भी मान सकती है। उसके पश्चात है सर्वहारी की तनाशाह का क्या अर्थ। देखिए सर्वहारी तनाशाही का अर्थ कामगार वर्ग का शासन है। यह पूंजीवादी समाज के बाद अपने आने वाले जो है समाजवादी समाज में कामगारों का एक राज्य स्थापित हुआ था। कहते हैं समाजवादी समाज में सर्वहार की तनाशाह उसी भाव में है जैसे पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों की तनाशाही होती है। यानी पूंजीपतियों का जो है अपना तनाशाह होता है, वहाँ पूंजीपति अपनी इच्छा अनुसार शासन करते हैं और यहाँ कामगारों की इच्छा अनुसार शासन भी करते हैं। इस पर मार्क्स ने स्पष्ट कहा कि सर्वहारी की तनाशाही कामगारों के राज्य, पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच जो है अंतरिम अथवा परिवर्तित प्रबंध के रूप में कार्य करता है। एक बार समाजवादी समाज की स्थापना हो जाने के बाद कामगारों का राज्य का कोई आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात वह धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाएगा। यानी कहते हैं आवश्यकता रहेगी तो ये बना हुआ रहेगा, आवश्यकता खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे जो होगा ये विलुप्त हो जाएगा। लेनिन का आग्रह था कि बुजुर्ग और राज्य से जो है सर्वहारी की तनाशाही गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही स्तरों पर बेहतर होता है, क्योंकि यह जो है मुट्ठी भर पूंजीपतियों के बजाय बेशुमार कामगारों के हितों और कल्याण की देखभाल भी करता है। अगर बात करें पूंजीवादी समाज के बाद आने वाले समाजवादी समाज की समाप्ति के बाद एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तथ्य सही है। यह इस अर्थ में वर्गहीन समाज है कि सभी कामगार भले ही जहां भी काम करते हों, कार्यालय में, कारखानों में, खेतों में, प्रत्येक अपनी योग्यता अनुसार काम नौकरी प्राप्त करता है। अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार काम मिलता है। और समाजवाद समाज के बाद आने वाला साम्यवादी समाज वर्गहीन और राज्यवहीन समाज दोनों ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे समय चल रहा है उसमें जो है राज्यवहीन और वर्गहीन समाज होने का इसमें जो प्रमाण दिया गया था वो सत्य सिद्ध भी आने वाला समय में होगा।
So our next topic is the reliance of the Marxism. The reliance as a Marxism here, the Marxism both are philosophy and also is a practice. Practice has attained to the position of the unparalleled is a social and political thought. It is an appeal to cross all the boundaries and in fact all the limits. It is a adversaries are as a much convinced of its strength as are it is a admire, and let its shortcoming are obvious. Change would not be occur simply because of the clash between the opposing classes, and history is indebted to class cooperation as well for it is a development. Material factor though the important and dominating, it may be is not the sole factor. It is explaining the whole complex of society as a enterprise. Indeed, man does not live by bread alone, but it is also true that he cannot be live. The Marxism has underestimated the world of the strength of national patriotics. As a sentence to stay, so that is the workers have no fatherland of their own. As Marx used to say, is to make them to the parentless. There is a not fatherland, there is a parentless. The Marxism also underestimated the importance of the state. To be said that the state is a class institution and therefore as a oppressive and exploitative ones in the oversimplify things. The Marxian is a formulation is a practice has been to the really disappointing. Disappointing here the Marxism as a practice has a failed. Whatever we as the reasons, one chief reason has been it is a centralized of tendency. It is a dictatorships of the proletariat is become to the dictatorships of the Communist Party. There is a party of discordance become ultimately there are dictatorships of the one man. With that is a sentence or there is a Mao. In the Soviet Union reform, a movement glasnost, especially United Bera, Milkhai, Gorbachev, is a marker there beginning of the end of the communist movement not only in their Europe but almost the world of over. The communist is the Chinese is introduced in numerous is a liberalization as a measuring in it is the economics and politics. There is a reliance of the Marxism as the alternative ideology before the world is no more unquestioned. यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट आया जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मार्क्सवाद की प्रासंगिकता। कहते हैं मार्क्सवाद की प्रासंगिकता क्या थी? कहते हैं मार्क्सवाद ने एक दर्शन और एक व्यवहार के रूप में जो है सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इसका आकर्षण सभी सीमाओं और वास्तव में सभी कर्मियों के पार करता था। इसके विरोध भी इसे उतने ही अस्वस्थ करता है जितने उसके प्रशंसक हैं। फिर भी उसकी कमियां जो है प्रत्यक्ष है। कहते परिवर्तन केवल विरोधी वर्गों के बीच संघर्ष के कारण ही नहीं होते हैं, इतिहास अपने विकास के लिए ही वर्ग सहयोग का ऋणी भी होता है। भौतिक घटक कितने ही महत्वपूर्ण और मुखर हो परंतु वे समाज की जटिलताओं की व्याख्या करने वाले घटक नहीं हो सकते हैं। वास्तव में मनुष्य केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं है परंतु यह भी सत्य है कि वह इसके बिना भी जीवित नहीं रह सकता। मार्क्सवादी ने राष्ट्रीय भावनाओं और देशभक्ति की जो ताकत और कीमत को कम करके आंका भी है। कामगारों का कोई अपना पितृदेश नहीं होता है, यानी कामगार जहां भी होते हैं चले जाते हैं और अपना जीविका कमाते हैं, उनका कोई अपना जो है पितृदेश नहीं होता है। जैसे कि मार्क्स भी कहते थे कि उन्हें अब अभिभावक रहित बनना है, यानी उनके कोई पेरेंट्स लेस बनना है, यानी उनको कोई पेरेंट्स नहीं चाहिए। मार्क्सवाद ने राज्य के महत्व को भी कम करके आंका था। यह कहना है कि राज्य वर्ग संस्था है, इसलिए दमनकारी और जो है शोषण करने वाले, यह कथन इसे अति ही सरल करना है। मार्क्सवादी की अवधारणाओं को वास्तव में निराशा किया है, यानी मार्क्सवादी अवधारणा ने वास्तव में अगर देखा जाए तो काफ़ी हमें निराश भी किया है क्योंकि इसकी विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। कहते हैं कारण चाहे कुछ भी हो परंतु व्यवहार में मार्क्सवादी असफल हुआ है, यानी सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा किया है लेकिन व्यवहार के अगर क्षेत्र में देखें तो मार्क्सवादी जो है सफल हुआ है। एक मुख्य कारण उसके केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, यानी केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है जिसके कारण ये व्यवहार के रूप में ये फेल हुआ है। सर्वहारी की तनाशाही साम्यवादी पार्टी की तनाशाही बन जाती है, यानी सर्वहारा की जो तनाशाह होते हैं वो तनाशाही बना देता है
और पार्टी की तनाशाह अंततः एक व्यक्ति को तनाशाही बना जाता है, चाहे वो स्टालिन हो या फिर माओ। कहते हैं सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा प्रारंभ किए गए सुधार आंदोलन ने विशेष रूप से ग्लास्नोस्ट न केवल यूरोप में अतुल लगभग पूरे विश्व में साम्यवादी आंदोलन के अंत का आरंभ भी कर दिया। साम्यवादी चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था में अनेक उदारवादी कदम उठाए और एक वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में विश्व के सामने जो है मार्क्सवादी का जो है प्रासंगिकता अब प्रश्न से अछूता नहीं रह सकता। दोस्तों ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट था मार्क्सवादी सिद्धांत। Gandhiism से here is Mahatma Gandhi is 1869 to 1948 is birth and was the supreme leader of their Indian nationalist movement, which he had is the lead for about the 30 years. Between 1970 to 1947, he was the thinkers is so far as had challenged most of the assumptions and doctrines of his time. And if there is a place provided the possible and is a plausible is alternatives. It is a really a difficulty to project of Gandhiji's in any particular frame. He was more than to the plateau and one can be possible call him a square. He was more than the Astus and one can be call him a Buddha. He was more than the Mills or Marx and one can call him Guru Nanak. And Gandhi was the liberals among the Marxists and the Marxists is among there is a liberal and he was the Democrat as among to the individualist and the individualist is among to the socialist. He was the idealist as among to the realist and the realist is among to the idealist. He had a combined in himself the vectors of all the known as the ideologies and past and present. महात्मा गांधी जिनका जो है समय अवधि 1869 से 1948 तक माना गया है, भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में भारत वाले जानते हैं, जिन्होंने 1917 से लेकर 1947 तक लगभग 30 वर्ष तक इसका नेतृत्व भी किया। वह एक चिंतक थे और उन्होंने अपने समय की अधिकांश मान्यताओं और सिद्धांतों को चुनौती दी तथा उनके स्थान पर संभव और युक्ति युक्त विकल्प भी प्रदान किया। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी ने हर एक क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया, चाहे भारत के आज़ादी के लड़ाई में हो चाहे अपने जीवन के आधारों में हो। गांधी जी जो है मार्क्सवादी में उदारवादी थे और उदारवादी में मार्क्सवादी, यानी दोनों विचारधाराएं जो थी इनमें सम्मिलित थी। इसलिए कहा जा सकता है कि गांधी जी जो थे मार्क्सवादी में उदारवादी थे और उदारवादी में मार्क्सवादी विचारधाराओं को लेकर चलते थे। वो व्यक्तिवादियों में एक लोकतांत्रिक थे और समाजवादियों में वो व्यक्तिवादी थे। वो यथार्थवादी में आदर्शवादी थे और आदर्शवादियों में यथार्थवादी। उन्होंने अपने आप में सभी पूर्व और जो है वर्तमान विचारों को अच्छी बातों को सम्मिलित करके किया था। गांधी एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न civilization. The Gandhi is a critics of the Western civilization here. Gandhi was a critics of the Western civilization and his complaint against the Western is a materialism is that is a destroyer and the every sense of the spiritualisms he is regarded to the Western types of man as is a domestics individually with all the flesh and the no soil. Against their state or exciting to the Western as a Gandhiji advocated what is called there is a Ram Raj and against the Western style of the managing things and through there is a centralized of force. He stole and the decentralized to the politics as against his materialism and industrialization and capitalism. He made a strong appeal for the Swadeshi cottage industries and theory of the trustship. यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये है पश्चिमी सभ्यता के आलोचक के रूप में गांधी जी किस प्रकार थे। गांधी जी का जीवन जो था मार्क्सवादी जो था और आपको जो है उदारवादी के बीचों में ही उन्होंने समावेश किया। उन्हीं दो विचारों के लेके आगे बढ़े। उनको कहा जाए तो आदर्शवादी हो या उन्होंने जो है आदर्शवादी की नींव भी रखी। कहते हैं उनके विचारधारा जो थी पश्चिमी जो आलोचक के रूप में गांधी जी सदैव थे। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यताओं को आलोचक थे क्योंकि ये इसलिए कि पश्चिमी सभ्यताओं के विरुद्ध उनकी शिकायत थी कि यह जो अध्यात्मवाद के सार को नष्ट करता है, यानी पश्चिमी सभ्यता के रिगार्डिंग वो बिल्कुल ही नाखुश थे। लेकिन कहते हैं वो उनकी विचारधारा था, वो मनुष्य की पृष्ठभूमि रूप से एक प्रामाणिक व्यक्ति मानते थे। कहते हैं जो हरास मास से
तो बना है, परंतु जिसमें आत्मा नाम की चीज़ ही नहीं होती। यानी हर मास से देखिए, कहते हैं विदेश में जो व्यक्ति होते हैं, जो पश्चिमी सभ्यताओं को मानते हैं, वो इंसान तो होते हैं लेकिन उनमें इंसानियत वाली चीज़ नहीं होती है जो मानव सभ्यता को जो उच्च कोटि पर पहुंचाए। इसलिए महात्मा गांधी उस सभ्यताओं के सदैव खिलाफ थे और उसके जो कभी भी वो नहीं मानते थे और उसका आलोचक भी थे। ठीक है, तो ये बात उनकी अपनी निजी फैसला थी, निजी सोच विचार था, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यताएं के लोग होते हैं उसमें कहते हैं मांस तो होती है लेकिन उनमें जो है आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। पश्चिमी प्रचलित राज्य के मुकाबले में गांधी जी ने राम राज की वकालत सदैव किया है। यानी उनका यही विचार था कि जियो और जीने दो। देखिए, ये बात महात्मा गांधी की काफ़ी उचित भी थी, क्योंकि हर इंसान जो धरती पर निवास कर रहा है उसको जीने का अधिकार है और इसका अधिकार कोई व्यक्ति जो है छीन नहीं सकता, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई भी था। इसलिए महात्मा गांधी उन विचारधाराओं को सदैव ही वकालत नहीं करते थे, लेकिन राम राज राज्य की जो वकालत सदैव किया करते थे। कहते हैं चीज़ों को पश्चिमी ढंग से केंद्रीकरण के माध्यम से प्रबंधन के मुकाबले वो विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। यानी देखिए, पश्चिमी ढंग से केंद्रीकरण करने के माध्यम में कभी भी वो अपना विचारधारा नहीं रखते, लेकिन सबके थे कि विकेंद्रीकरण के समर्थक सदैव थे। वो भौतिकवाद, योगीकरण और पूंजीवाद के विरुद्ध उन्होंने स्वदेशी, कुटीर उद्योग और ट्रस्टशिप के सदास के पक्ष में सशक्त विचार दिए। यानी देखा जाए तो महात्मा गांधी के सशक्त विचार था कि भौतिकवाद जिसपे हम पड़े हुए हैं, औद्योगिकरण के और पूंजीवाद के विरुद्ध वो हमेशा थे। तो भौतिकवाद का मतलब यही था कि वो जैसे हम ऐसो आराम में अपना जीवन जीते हैं उसका वो सदैव ही खिलाफ थे, क्योंकि उनका विचार था जितना सादा जीवन जीते हैं इंसान उतना ही अच्छा रहता है। तो इसका जो है खुद ही वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आपने देखा होगा कि एक जो है धोती का उन्होंने प्रयोग किया और उसी से जो है पूरा देश का जो है संचालन भी किया। तो ये बात उनके लिए सटीक साबित होता है। और औद्योगिकरण के भी विचार में वो नहीं थे, क्योंकि औद्योगिकरण तो देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है औद्योगिकरण के हम रूप में जा सकते हैं, लेकिन औद्योगिकरण की वजह से क्या होता है कि बहुत से लोगों की हाथ कट जाती है, यानी उनको जॉब नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से जो है वो लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, पैसे नहीं होते हैं और ये सब जो होता है किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। इसलिए महात्मा गांधी जी कभी भी इन विचारधाराओं को आगे प्रोत्साहित नहीं किया। उनका विचार यही था कि ये सब चीज़ें जो होती है इंसानों की कमर को तोड़ के रख देती है। और वो पूंजीवाद के सदैव विरोधी भी थे, क्योंकि पूंजीवाद जो होते हैं सिर्फ वो आगे अपना ही जीवन के बारे में सोचते हैं। इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया था कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे ही देश में बना हुआ हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ें हमारे देश में बना हुआ होता है उसका प्रयोग करने से ये होता है कि हमारे देश के लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है और उनका व्यापार भी चलता है और वो अपने आप को पूरा विश्व में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी हो जाते हैं। तो इस बात के लिए वो सदैव ही समर्थक थे। उनका विचार था कि कुटीर उद्योग होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कुटीर उद्योग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने घरों में भी ये कार्य कर सकता है। यानी हस्तकला का कला होती है जिसको हम घरों में भी कर सकते हैं, छोटे छोटे जो है कुटीर उद्योग लगा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इससे कई घरों में व्यक्तियों को जो है जॉब मिल जाता है, काम मिल जाता है, उनको जो है सरकार की तरफ जो है आंखें दिखा के देखना नहीं पड़ता है, टकटकी लगाना नहीं पड़ता है कि सरकार नौकरी की अवसर निकालेंगे तो हम जाएंगे। कहते हैं अगर आज देखा जाए सरकार के 75,000 नौकरी निकलती है तो उसके 50 करोड़ जो होते हैं बंदे उसमें अप्लाई करने लग जाते हैं। तो इसमें उनका फ़ायदा हो जाता है। अगर वो 50 बंदों को भी जॉब देते हैं और उनके फॉर्म द्वारा भरा जाता है तो उसके भी पैसे लेते हैं। तो कहते हैं उनका आजीवन जितने भी पैसे उनको देना होता है सारा तो उनको एक जॉब के वैकेंसी निकालने में उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है सरकार ऐसे कार्य करते रहते हैं। लेकिन उनका महात्मा गांधी का विचार था कि हमें स्वदेशी ही यूज़ करना चाहिए और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने कार्य में संलग्न रहे। द नेक्स्ट टॉपिक इज decentralization, cottage industries and transship. There is the most important for the Gandhiisms. Gandhi is not a admirer of the types of the state that exist of the Western society. For him, the Western state represented the violence in a concentrated form. It is a soulless machines. According to Gandhi ji, as the philosophical is anthraxist and admitted the state, but every unwilling only when it is the most of needed. An anarchist is one who is the opposed to every type of state. Is a Marxism is a theory of the lawlessness without state and
without government, without the law. That is the most important theories here. And the Gandhiism stands from the non-violent state based on their consent of their people. Their need is unit in the society. Gandhi advocated to the decentralization of power, both political and economical. The spirit of Gandhians is that democracy is the spirit of decentralization. The here decentralization is mean devolutions of power at each level of begin from the individually and the local unit of reaching the apex. The essence of the decentralization according to the Gandhi is that all power flow from below and go up is in a ascending order. So consider is a political power is a Gandhian, is a chiefs, is a vested in the individuals. There is a center of all activity is a repository at the Swaraj. From individual power is transferred to their village. From a village the power goes to the higher unit and ultimately end up with there is a central. The national government which is the practically is a perform only the coordinating function. Thus that is what cannot be done by their individual is done by their village, and what is not to be done by the village done by the local. Regional is a government, and what is done by there is the regional. Provisional as a government is done by the central national government. The spirit of the Gandhian is the Ramraj is that it is a self-regulating system where everyone is once or when rules and not to be hindrance to one's the never boards. And the Gandhiji is a concept of is a decentralization is economical accept. He is agreed for the de-evolutions of economical power as well. He is advocated the village economy through there is a promotion of village small cottage industries. In fact, he was for the self-reliant village economics. He is a concept of Swadeshi as a that spirit which is required as to be served over immediately is a in other words, and is a thinking produced in our neighborhoods is a profession to those more remote. And Gandhiji is a favor there is a revolt of the indigence is the industry so that is the people could have enough to eat. In his opinions, may be kind of economics which is exploited to the people and helped is a concentrated wealth in a fair hand stand is a condemned. Gandhi's idea of truthships was unique. It was unique because it is aimed at establish is a cordial relation between the capital and labor and declaring all poverty to their properties of the community as well. And Gandhiji placed it there that all there is employers is the industrialist and the capitalist and the like are the trustees of what they hold. As such, they all are the entitled only for there is money there is need for certifies there is a necessaries as to do is the employers there is a work etc. For the Gandhiji no individually is the owner, all workers and all are their workers. Everyone get for their service and render. The profit is a not of our and what is belong to the community. The employers are the trustees is and not to be master. The employees are the necessaries is a component of the enterprise are the workers and not slaves. यदि हम बात करें अगले पॉइंट की जिसमें बताया गया कि राज्य विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग एंड ट्रस्टशिप, देखिए महात्मा गांधी जी जो थे वो काफ़ी इन चीज़ों के जो है फेवर में थे कि राज्य विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कुटीर उद्योग को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, साथ में उन्होंने ट्रस्टशिप को काफ़ी भी प्रोत्साहन दिया। कहते गांधी जी उस प्रकार के राज्य के प्रशंसक नहीं थे जो पश्चिमी प्रचलित थी, पश्चिमी के राज्यों के ऊपर सदैव ही खिलाफ थे। उनके लिए पश्चिमी राज्य सदन रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करते थे जो आत्मा रहित मशीन की तरह था। यानी कहते हैं उसमें मशीन अगर देखा जाए तो उसमें कोई आत्मा नहीं होता है, मशीन को जो हम आदेश देते हैं वही कार्य करता है। लेकिन इसीलिए महात्मा गांधी जी जो थे इस तरह के जो है प्रतिनिधित्व कभी नहीं किया। इसके विपरीत गांधी जी ने एक जो है अराजकतावादी दार्शनिक के रूप में राज्य को स्वीकार तो किया, परंतु बहुत अनक्षा से और केवल तब उसकी अत्यंत आवश्यक हो। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है जो फैक्ट के रूप में है। कहते हैं अराजकतावादी प्रत्येक प्रकार के राज्य के सदैव विरोधी होता है
और अराजकतावाद राज्य रहित, सरकार रहित और कानून रहित विधि विहीन एक सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। यदि हम बात करें गांधी जी की जो विचारधारा थी, जिसमें गांधी जी ने बताया था कि अहिंसक राज्य का समर्थक है, जो देखिए अहिंसक राज्य का समर्थक है जो लोगों की सहमति समाज में लगभग एकता पर आधारित होती है। गांधी जी ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप में सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो है वकालत सदैव किया है। गांधीवादी लोकतंत्र की भावना विकेंद्रीकरण की भावना के रूप में देखा गया। विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्ति का प्रत्येक स्तर पर जो हस्तांतरण तो जो व्यक्ति स्थानांतरित इकाई से आरंभ होकर शिखर तक जाती है। गांधी जी के अनुसार जो विकेंद्रीकरण का तत्व यह है कि सभी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जो आरोही क्रम में चलती चली जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा गांधी ने इन विचारधाराओं को सदैव ही प्रोत्साहन दिया। इस विचारों से गांधीवादी सिद्धांतों में राजनीतिक शक्ति व्यक्तियों में निहित होती है, इस बात को काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ाया। सभी गतिविधियों के केंद्र स्वराज के उद्यम होते हैं और व्यक्तियों की शक्ति सत्ता गांव को स्थानांतरित होता है। गांव से सत्ता उच्चतर इकाई की जाती है और केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। यानी इन्होंने साफ शब्दों में इस बात को जो उजागर करने की कोशिश किया था कि कोई भी सत्ता जो है गाँव से शुरू होती है और जो है केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर जो है समाप्त हो जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई गांव से रिलेटेड होता है और उसके बाद जो है शहर पे आते आते जो है उसकी अंत हो जाती है। अंत जो एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता अथवा नहीं किया जा सकता है उसे गांव करता है। जो गांव द्वारा नहीं किया जा सकता उसे स्थानीय क्षेत्रीय सरकार करती है और ये क्षेत्रीय सरकार नहीं कर सकती है उसे केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। गांधी जी के राम राज्य की आत्मा यही है कि यह एक आत्मनियंत्रण व्यवस्था है, जहां कहते प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं है और अपने पड़ोसी के लिए बाध्य नहीं है। कहते गांधी जी के विकेंद्रीकरण का एक आर्थिक पक्ष भी है। उन्होंने आर्थिक शक्ति को विकेंद्रीकरण के लिए भी कहा है। उन्होंने जो है ग्राम में कुटीर उद्योग को सदैव प्रोत्साहन के माध्यम से ग्राम अर्थव्यवस्था की वकालत किया। कहते हैं अगर गांव में अगर देखा जाए कुटीर उद्योग लगाया जाता है तो ये लोग जो है शहर की तरफ जो है पलायन नहीं करेंगे और उनका जो है घर जो है कहते गांव में भी अच्छे तरह से चल सकता है। तो इस बात के लिए गांधी ने सदैव ही वकालत किया था। कहते वास्तव में वो आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था चाहते थे, यानी गांव में जो है आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था बनाना ही उनका प्राथमिक उद्देश्य था। कहते हैं ये होना अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी राष्ट्र के लिए। इससे ये होता है कि व्यक्ति जो है अपने ही क्षेत्र में अपने लिए सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था तैयार कर देता है। कहते स्वदेशी का सिद्धांत अवधारणा यह वो भावना है जो हमसे अपने बिल्कुल निकट के जो है पड़ोसी की सेवा करने की अपेक्षा कर रखती है तथा बहुत दूर जो है उत्पादित हुए वस्तुओं की तुलना में पड़ोस में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करने को कहती है। गांधी जी ने देसी उद्योगों को जो है पुण्य जीवन का पक्ष लिया ताकि लोगों को खाने के लिए पर्याप्त मिल सके। उनके विचार में ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था जो लोगों का शोषण करती हो तथा धन संपत्ति को कुछ भी हाथों में केंद्रित होने से सहायता करती हो वह निंदनीय है। यानी महात्मा गांधी ने सदैव ही गरीबों के लिए और उनके लिए जो है अग्रसर रहे। गांधी जी का जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अद्वितीय है कि उन्होंने ट्रस्टीशिप जो दिया था सिद्धांत वो अद्वितीय है। यह इसलिए अद्वितीय है, इसका जो है लक्ष्य पूंजी और श्रम के बीच जो है मधुर संबंध स्थापित करता है। सारी संपत्ति को पूरे समुदाय की संपत्ति जो है घोषित कर गांधी जी ने पैरवी भी की कि रोजगार देने वाले सब लोग उद्योगपति हो या पूंजीपति हो आदि होना चाहिए। अपनी जो है संपत्ति को ट्रस्टी है, इसके साथ उन्होंने जो है केवल उतने ही पैसे का अधिकार है जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जैसे अन्य कर्मचारी को है, मजदूर इत्यादि को है। गांधी जी के लिए कोई एक व्यक्ति जो है स्वामी मालिक नहीं है, सभी काम करते हैं और सभी कामगार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सेवा के बदले में कुछ मिलता है। लाभ पर मालिक का अधिकार नहीं होना चाहिए, अतुल यह समुदाय का होता है। रोजगार देने वाले ट्रस्टी है न कि स्वामी। कर्मचारी उद्यम के आवश्यक अंग अर्थात वह कामगार है न कि दास। देखिए ये बात गांधी जी ने साफ शब्दों में समझाने की कोशिश किया था कि कोई व्यक्ति किसी के पास काम करने जाता है ना तो वो कहते ना तो वो दास है और ना ही वो कोई गलत है, वो तो अपना कार्य करने गया और कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति जिसने काम करवाया है वो कहते एक ट्रस्टी था, काम करवाने वाला था यानी स्वामी था। इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो उसके साथ गलत करेगा या कुछ भी गलत
रहेगा। इस बात के लिए गांधी जी ने सदैव ही इस बात को खंडन भी किया था कि सिर्फ लाभ जो है मालिक को नहीं मिलना चाहिए, अतुल पूरे समुदाय को मिलना चाहिए। कहते हैं कोई उद्योग अगर आप लगाते हो, कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है, तो उसमें मजदूर जो काम कर रहे होते हैं उनका भी उतना ही अधिकार होता है जितना मालिक का होता है। तो कहते हैं अगर लाभ मिलती है तो वो लाभ जो है समुदाय में भी बांटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहीं कहीं आप देखोगे कि कहते हैं मजदूरों को मजदूरी मिल जाती है और सारे के सारे लाभ जो होते हैं कहते हैं जो उद्योगपति उठा लेते हैं। तो ये इस बात के सदैव ही जो है महात्मा गांधी खिलाफ थे। इसी को हम ट्रस्टी के नाम से भी जानते हैं। The next topic is end and means. What do you mean to ends and mean here? According to the Gandhiji, end and mean is a constitute two aspects of the same related. Is example two sides of the same coin. The Gandhi say there is a consists two aspects of the same relative. There are two sides of the same coin. They form a organic walls in grow out of the means. As are the means, so are the ends. Gandhiji used to say, he also said the means may be a likened to be seed, the end to be a tree, and there is a just the same invaluables is a connected between the means and the end as there is a between the seeds and tree. He is argued that is the state is cannot be attained. It is an ideal character as long as the mean are trained with their violence. That is why away to the emphasis on the purity of mean to achieve their ends. Impure means it cannot be achieved pure end. He said, once I would not be accept a Swaraj if it's come, thought there's a bloodshed. Against for me is ahimsa is come before a Swaraj. So close and inseparable is the relation between to the two that it won't take care of the means. The end as will take care of himself is a furthermore the realization of the goal has to be a for a Gandhi जी in a proposition of that is a mean. देखा जाए तो गांधी जी ने साध्य और साधन को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया था। साध्य और साधन देखिए ये क्या है। अगर हम गांधी जी के अनुसार देखें तो गांधी जी के अनुसार जो साध्य और साधन एक ही जो है वास्तविकता के दो पक्ष हैं, यानी एक ही चीज़ है उसका दो ये पक्ष हो सकते हैं, यानी एक ही जो है सिक्के के दो पहलू भी हो सकते हैं। यानी अगर एक होती है तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक जो है बन जाती है। इससे एक जो है जैविक पूर्णता निर्मित होती है, यानी इससे एक जैविक पूर्णता निर्मित होती है। साध्य साधन से ही बनते हैं। देखिए साध्य जो होता है साधनों से ही बनता है, ठीक है। जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य भी होगा। जितना आपको साधन मिलेगा वैसे ही आपको जो है साध्य भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि साधन बीज की तरह होते हैं और साध्य वृक्ष की तरह हो, और दोनों से वैसे ही जो है अलंघनीय संबंध है जैसे कि बीज और वृक्ष में है। उनका कहना था कि राज्य अपने आदर्श चरित्र को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक साधनों पर हिंसा की दाग है। यानी देखिए कोई भी राज्य आदर्श चरित्र नहीं बन सकता है जब तक उस पर हिंसा की दाग है। अगर उसको हिंसा को हटाना है तो उसको जो है इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। इसी कारण उन्होंने जो है साध्य की प्राप्ति के लिए सदैव ही साधनों की पवित्रता पर सदैव बल दिया है। कहते हैं साधन जितना पवित्र होगा उतना ही साध्य अच्छा होगा। अशुद्ध अपवित्र साधनों से पवित्र पावन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं स्वराज को भी स्वीकार नहीं करूंगा यदि यह रक्तपात के माध्यम से आता हो, और फिर कहा मेरे लिए स्वराज से पहले अहिंसा है। दोनों के बीच में इतना गहरा संबंध है कि यदि कोई साधन का ध्यान रखता है तो साध्य स्वयं अपना ध्यान रखेगा। इसे आगे गांधी जी के लिए लक्ष्य की प्राप्ति साधनों के अनुपातों में होगी। यानी गांधी जी ने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर रक्तपात से अगर मुझे स्वराज भी मिलता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। जब कहते हैं भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, जब इतने खून खराबा हुआ, तो गांधी जी ने जो है यहाँ से चले गए, किसी दूसरे स्थान पर रहने लग गए, और उनका मन जो था बिल्कुल ही विचलित हो चुका था, क्योंकि इतने खून खराबा देख के वो इस बात जो उन्होंने विचारधारा दिया था उसके बिल्कुल ही विपरीत हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी हताश हो गए थे। तो ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बात को वो समझते भी थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी अंत तक इन्होंने हर संभव कोशिश किया कि जो है भारत का बंटवारा न हो। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरे कहते हैं एक बंदे कितना कुछ कर सकते हैं जहाँ पर जो है कई बंदे वहाँ पर बैठे पड़े थे।
Our next topic here is the society and Sarvodaya. The Gandhi is not only a theory of the politics, economics, religion, stress, but is also his theory of the society. The Gandhi is a was of social philosophy. He is the philosopher of the equality. Equality is not is the sense of the self equality, but is the sense that is as a human beings all are equal. A society based on the equality, according to the Gandhi ji, is the society which is a reject any and even types of the discrimination, either on the basis of the caste, creeds, class, sex, race, and religion. We are born as a human beings, not a Hindu, not a Muslim. We are born to the human beings, not as a upper caste began to the Dalit. Gandhi is opposed to be all types of is the discriminatory, the tendencies, and their trend. For him, there is only one caste, one class, one religion, one race, and that is the humanities. He is there, therefore, did not be admit any discrimination. In fact, he was more the is the welfare of the weakers, and for a woman is a compared to the man. For the weaker section of society is a Harjan and the Dalit. It is not the one to be deprived to the A and give to the B. It is that is the one to give a B more so as to enable him to get a height of the A, and he advocated equality so as to the level people is a social, economics, and political hardships. His the concept of equality aim at the bridging their gap and not distancing them. And Gandhi ji is a concept of Sarvodaya. Some of up his is a view on the kind of society he used to the dream of Sarvodaya, and the Gandhi ji the as a visualist right visualizes there is the greatest good of the all the member of the society. It is the welfare of all. It is the good of the individually together with the good of their individual. The good of the each with their good of all. The concept of good is Sarvodaya is not a marriage material. It is a moral and spiritual as well. यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पॉइंट आया है समाज और सर्वोदय, देखिए महात्मा गांधी जी का विचार सदैव इसी बात पे रहा है कि एक ऐसा आदर्शवादी समाज की स्थापना हो जहाँ पर जो है सब व्यक्ति मिलजुल के रहे, सब एक सामान्य रहे और किसी प्रकार की भेदभाव न हो। लेकिन कहते हैं ये बात संभव कहाँ हो सकती थी। कहते हैं जब भारत की बंटवारा हुआ तो महात्मा गांधी काफ़ी निराश हो गए, हताश हो गए, क्योंकि उनकी जो इनकी सोच थी वो बिल्कुल ही कहते हैं उसके विपरीत चला गया। कहते हैं गांधीवाद मात्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था या धर्म रणनीति का सिद्धांत नहीं माना जा सकता है, अतुल समाज का सिद्धांत भी हो सकता है। ये गांधी जी का पूरा जो है समाजी दर्शन जो है समानता का दर्शन ही माना जा सकता है। समानता निरपेक्ष समानता की दृष्टि से नहीं, परंतु इसलिए कि सभी मानव सामान्य ही हैं। कहते हैं मानव हर एक सामान्य ही होता है। कहते हैं गांधी जी के अनुसार समानता पर आधारित समाज प्रत्येक प्रकार के आधार पर जाति, नस्ल, वर्ग, लिंग, वंश के भेदभाव को सदैव नकारता है, क्योंकि इससे जो होती है किसी को भी अच्छा प्राप्त नहीं होता है। इससे समानता पर आधारित गांधी जी ने बस साफ शब्दों में कहा था कि जो है अगर हम जाति के देखें, नस्ल देखें, वर्ग, लिंग, वंश और भेदभाव को कभी भी हमें नहीं अपनाना चाहिए। कहते हैं मानव के रूप में पैदा हुए हैं, न कि हम हिंदू और या मुसलमान के रूप में पैदा हुए हैं। हमारे ऊपर कहीं थप्पा हुआ लगा हुआ नहीं होता कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। हम मानव के रूप में पैदा हुए हैं, न कि जाति या उच्च जाति या दलित या के रूप में। देखिए कहते हैं कोई लोग अगर जन्म लेता है तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है कि आप उच्च जाति के हो कि दलित जाति के हो। गांधी जी ने प्रत्येक प्रकार के भेदभाव वाली प्रवृत्तियों को जो प्रभा का विरोध सदैव किया था। उसके लिए केवल एक ही वर्ग, एक ही धर्म और एक ही जाति थी और वह थी मानवता। कहते हैं मानवता ही सबसे इम्पोर्टेंट जाति है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है मानव बन के रहे वही काफ़ी है। इसलिए उन्होंने किसी भी भेदभाव को स्वीकार सदैव कभी भी नहीं किया। वास्तव में कमज़ोर के कल्याण के पक्षधर थे, यानी महात्मा गांधी देखा जाए तो कमज़ोर लोगों के सदैव ही साथ थे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कल्याण, समाज के कमज़ोर वर्ग, हरिजनों और दलितों कल्याण के पक्षधर सदैव थे। ऐसा नहीं था कि वह अ को वंचित करके ब को देना चाहते हों, अतुल वह ब को अधिकार देना चाहते थे ताकि अ की ऊंचाई को वह
प्राप्त कर सके। उन्होंने जो है समानता की वकालत सदैव की ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है श्रेणी क्रम में बराबरी पर लाया जा सके। उनकी समानता की अवधारणा खाई को पाटने, दूरियों को कम करने और लक्ष्य रखती थी, न कि उनमें दूरी बढ़ाने की। यानी देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने साफ जो ये करने की कोशिश किया कि सभी जो है मानव बन के रहे और मानवता के जो है रूल रेगुलेशन पे चले। गांधी जी के जो है सर्वोदय की जो अवधारणा उनके सपनों के समाज पर उनके विचारों को प्रस्तुत भी करती है। यानी महात्मा गांधी ने इस तरह के जो है समाज के सपना देखा था। गांधी जी की कल्पना के अनुसार सर्वोदय समाज को सभी सदस्यों की अधिकतम भलाई अथवा उनका कल्याण है, यह सबका कल्याण है। यह व्यक्ति का भी और जो है सभी व्यक्तियों कल्याण के साथ ही कल्याण माना गया था। सर्वोदय में भलाई अथवा कल्याण की अवधारणाएं केवल भौतिक नहीं थी, अतुल यह आध्यात्मिक और नैतिक भी मानी जाती है। तो गांधी जी के जो ये विचारधारा थे गांधीवाद, वो कई मानने में बहुत इम्पोर्टेंट था। देखा जाए तो गांधी जी ने जो है, अगर हम देखते लिबरलाइजेशन या हम मार्क्सिज्म देखते हैं तो उन दोनों विचारधाराओं में से सम्मिलित थी। यानी गांधी जी ऐसे विचारधारा को मानते थे जो सत्य पे आधारित था और कहते इसमें किसी प्रकार के हिंसा या किसी प्रकार का रोष भाव नहीं थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट था। जिनके सिलेबस में अगर ये सारे बात हैं, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो गांधीइज्म हो, चाहे लिबरलाइजेशन हो, तो इनके लिए मतलब है कि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए ये टॉपिक सिद्ध भी होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा और जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप रिसर्च करके देखोगे तो उसमें जो है पहले से जो बने हुए हैं, जो यूट्यूब पे व्यक्ति लगे हुए हैं, उनका ही वीडियो आपको सबसे पहले आएगा और त्रिपान स्टडी सेंटर जो है नहीं आएगा। तो इससे जो होगा आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जैसे सब्सक्राइब आप करोगे तो वहाँ पर वीडियो पे जाओगे तो आपको सारे वीडियो जो रिसेंटली डाली गई है या पुरानी सारी वीडियो हैं वो बहुत आसानी से आप क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे। जो वीडियो आपके काम के होंगे, जो आपके टॉपिक पे आधारित होगा, उसको आप या तो कहीं सेव करके रख के जो है समय समय पे देख के ज्ञान का जो है आप प्रकाश को जगा सकते हो।